خاص ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنی بائبل مقدس کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ کہ میں اس پہ چلنے کے لیے دن رات اپنا دھیان اس پر لگاؤں گا اور اس پر چلوں گی، تاکہ میں بہت سا پھل لے کر لا کر تجھے جلال دے سکوں۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے مسیح یسوع کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ خدا باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے، اور مسیح یسوع میں باپ کی ہمارے لیے یہی مرضی کہ ہم بہت سا پھل لائیں، 100 گنا پھل لے کر آئیں۔ اے خداوند مجھے 100 گنا بولو پھل لانے کی طاقت سے بھر۔ آج کا کلام میں اپنے دل میں سنبھالوں گی، سدا یاد رکھوں گی، اور اس پر چلوں گی اور اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گی، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی پاک پوتر حضوری میں جو ہمیں ایک نیا موڑ دیتی ہے، ایک نئے لیول پر لے کر جاتی ہے اور ہمیں سیم نہیں رہنے دیتی، اس پاک حضوری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویلکم چرچ۔ ہاللیلویا، آمین۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کو گایا کہ پاک لہو ہے جند بخشدہ، زندگی دیتا، پاک لہو زندگی دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے لوکا 22 کی 19 میں لکھا ہے، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ سب خون نہ کھانا، کیونکہ خون میں کیا ہے؟ جان ہے۔ لیکن پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کس لیے کیا کرو؟ تاکہ تمہیں یاد آئے کہ میں تمہارے لیے مارا گیا، تمہارے لیے گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، زندہ آسمان پر جا کر باپ کی دہنی ہاتھ بیٹھا تمہاری شفاعت کرتا۔ ہاللیلویا۔ تم اس بات کو یاد کرنا۔ میں اس کو پڑھوں گی انگلش میں، ایک بہت سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ترجمے انگلش میں، لیکن یہ ترجمہ جس میں اس کو بڑا اچھے سے سمجھ پائیں گے آپ۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لیکن after supper he gave them another glass of wine, saying, this wine is the token of God's new agreement to save you. Hallelujah. An agreement sealed with the blood. I shall pour out to purchase back your souls. Hallelujah. زور سے بولو ہاللیلویا۔ لکھے انگلش میں کہ اس نے کیا کیا؟ پیالہ لیا اور پیالہ دے کر ان سے کہا کہ یہ ایک نیا ایگریمنٹ ہے خدا باپ کا، خدا کا تمہارے ساتھ میرے اس لہو کے وسیلہ سے ایک نیا عہد ہے، اور یہ نیا عہد لہو سے سیل کیا جا رہا ہے، لہو کے ساتھ باندھا جا رہا ہے۔ کون سا عہد؟ اس کیا سیل کیا جا رہا ہے؟ لہو کے ساتھ کیا چیز کو سیل کیا جا رہا ہے؟ کہ میں نے تمہیں بچا لیا، تم چھڑائے گئے ہو۔ لیکن I shall pour out to purchase back your souls. میں نے اسے اس لیے بہایا تاکہ تمہاری روحوں کو واپس لے کر، خرید کر واپس لے سکوں۔ ویسے ہی نہیں، purchase back your souls، خرید کر۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ خریدے گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو کوئی خریدا جاتا ہے قانوناً وہ غلام ہے، قانوناً وہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ لیکن مسیح یسوع میں خدا کی ہمارے لیے یہ محبت ہے کہ وہ ہمیں غلام نہیں کہتا، وہ ہمیں بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے، یسوع مسیح نے کہا۔
यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा? मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, नौकर नहीं, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, पर मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, और जो कुछ नहीं बताया वो मेरा रूह तुम्हें आइंदा की बातें क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। एन एग्रीमेंट सील्ड विद द ब्लड, आप बचाए और छुड़ाए गए हैं, ये एग्रीमेंट हो चुका है। आज से 2000 कई साल पहले आपके लिए एक एग्रीमेंट डन हो चुका है, सील हो चुके, एक एग्रीमेंट, एक अहद सील्ड हो चुका है लहू के साथ। एक अहद बांधा जा चुका है, और वो अहद आपको बचाने का अहद है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम बहुत दफा पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं, यहोवा खुदा कहता है मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे छुड़ाने के लिए एक मसीहा, अपना बेटा यानी कि खुदावंद यीशु मसीह भेजूंगा, जिसकी ईद हम थोड़े दिनों में मनाने वाले। हम उसके पैदाइश को, उसके मुजस्सम होने को सेलिब्रेट करने को। हालेलुया। कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। कैसे? मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार करूंगा अपने बेटे के वसीला से, ताकि तुम उस पर चलकर उसे कबूल करके तुम मुझ तक रसाई कर सको। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं आई शैल पोर आउट, मैंने अपना लहू बहाया है तुम्हें खरीदने के लिए, बैक, तुम्हारी सोल्स को बैक लेने के लिए, वापस लेने के लिए। इसका मतलब जो कहीं चला जाता है उसको वापस लाया जाता है। वापस लाने का, बैक लाने का, यानी कि तुम्हारी रूहों को, तुम जो नाफरमानी करके बागे अदन में नाफरमानी करके, तुम जो शैतान के हाथों तुमने अपने आप को बेच दिया और तुम उसकी तरफ चले गए, गुनाह में चले गए, नाफरमानी में चले गए, तो तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने तुम्हें परचेज किया, खरीदा है मैंने तुम्हें। हालेलुया। जो खरीदा जाता है उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, याद रखना, क्योंकि असूलन कानूनन वो क्या है? गुलाम है, और गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती बल्कि आका की मर्जी होती है, वो उसको कैसे चलाए। हालेलुया। लेकिन हम जो बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं, इसीलिए तो भी वो हमें तंबी करता और चाहता है कि हम अपनी मर्जी ना चलाएं। क्यों वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी ना चलाएं और उसकी मर्जी को फॉलो करें? क्यों? क्योंकि हम उस बच्चे की, उस एक छोटी चिड़िया जो अपने चूजों को, अपने बच्चों को निकालती है अंडे में से, कुछ दिन तक उसके बच्चों की आंखें बंद रहती हैं, और माँ खुद ही लाकर उसके जो है वो दाना या जो कीड़ा मकोड़ा जो भी वो लेके आती है वो उसके मुंह में डालती है, और बाय फेथ वो बच्चा अपने मुंह सिर्फ खोलता है। उसको नहीं पता कि माँ मेरे मुंह में जहर डाल रही है या क्या डाल रही है, इवन कि उसको अपनी माँ की भी पहचान नहीं, लेकिन बाय फेथ वो अपना मुंह खोलता है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे फेथ है जो कुछ इस जगह पे आके जो बैठी है वो मेरी माँ ही है, और वो जो कुछ मेरे मुंह में डाल रही है वो मेरे फायदे के लिए। उसकी अपनी, अगर वो अपनी मर्जी चलाएगा और वो कूद कर बाहर गिर जाए तो वो मर जाएगा। ऐसे ही हमें बैठ जाना है उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में बैठ जाना है पूरे ईमान के साथ कि वो मेरा आसमानी बाप है, वो मुझे जो कुछ दे रहा है या अपनी मर्जी जो मुझ पे चाहता है कि मैं उसकी मर्जी को मानूं, तो उसी की मर्जी में रहना मुझे नशोनुमा देगा, मुझे ग्रोथ देगा, और एक दिन मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं अपनी माँ को रूहानी आंखों से देख पाऊंगा, मैं उसे देख पाऊंगा और समझूंगा कि ये वही थी जो मुझे खुराक देती थी। वो आपकी माँ, वो आपका बाप, आपका आसमानी बाप है जो आपके लिए माँ, बाप, बहन, भाई हर किरदार अदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? इसीलिए वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी ना करें। हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? नहीं बेटा, तुझे अभी नहीं पता, तो अभी बच्चा, तो अभी छोटा है, तुझे नहीं पता कि बाहर जाना अभी खतरा है, अंधेरा हो गया। हालेलुया। तुझे नहीं पता कि इस वक्त अकेले रोड पे जाना खतरनाक है। हम अपने बच्चों को क्यों इतना गाइड करते हैं? क्योंकि हमने बचपन गुजार कर एक एक्सपीरियंस लिया होता है, और हम अपने बच्चे को कहते हैं तेरे लिए ये अच्छा है कि तू मुझे फॉलो करे, क्योंकि मैंने इन सारी चीजों का तजर्बा लिया हुआ। और वो हमारा आसमानी बाप, जिसका बाइबल कहती है ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है, वो सदियों, वो शुरू से ही है, इब्तदा उसने आकर बनाई। इब्तदा जो लिखा है बाइबल में, इब्तदा में कल तो इब्तदा जमानों की इब्तदा है, खुदा की नहीं। उसका कोई शुरू कोई आखिर है ही नहीं। हालेलुया। तो वो सब कुछ जानता है,
वो आने वाला प्लान रखता है, इल्म साबिक रखता है, वो जानता है कि आगे इसके साथ क्या होगा। हालेलुया। अगर आपका बच्चा ऊंची दीवार पे खड़ा हो जाए, वो जोश में हो, नहीं मैं छलांग लगा दूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर आपको पता होता है, क्योंकि आपकी समझ उससे बड़ी, आपको पता होता है नहीं गिरने से इसकी चोट लगे, इसकी टांग टूट सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती है, वो आपको पता होता है, पर वो नहीं समझ रहा होता। ऐसे ही हम होते हैं जब अपनी रूह में छोटे होते हैं, जब अभी खुदा के पीछे चलना शुरू करते हैं, ऐसे ही हमारा हाल है। हमें लगता है मैं ऊंचाई पे, मैं बड़ा हो गया, मैं तो ऊंची जगह पे खड़ा हो गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वालिदैन क्या कहते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी ये ऐसे मत कर, तू ऐसे चल, ऐसे चल। क्यों? अपनी मर्जी बच्चे को क्यों नहीं चलाने देते? कि कहीं उसी का नुकसान ना हो जाए। इसी तरह खुदा भी हमें अपनी मर्जी चलाने से मना करता है, ताकि हम अपनी मर्जी ना चलाएं, उसकी मर्जी को मान कर अपने आप को सदा खतरों से महफूज रखें और शैतान से महफूज रखें। हालेलुया। हमने जो उसके खिलाफ बदी करके, गुनाह करके जो हम दूर चले गए, तो लिखा है मैंने लहू बहाकर, खून बहाकर। आप जानते हैं बाइबल कहती है पुराने अहदनामा में बनी इस्राएल कौम क्या करती थी? हर साल कुर्बानी करते थे, वो रोज कुर्बानी करते थे, और कई बार साल बाद, और कई बार हर रोज कुर्बानियां करते थे। किस लिए? ताकि हमारे गुनाहों की माफी हो सके। लेकिन बाइबल बताती है उसने एक नया अहद बांधा। कौन से अहद की बात हो रही है? वो अहद जिसमें तुम्हें बैलों और बछड़ों के खून की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसा बर्रों को, बकरों को जबरदस्ती बांध कर, टांगे हाथ उनके, टांगे बाजू बांध के उनको लटाया जाता और ढाकर उनको जिबा किया जाता था और फिर लहू चढ़ाया जाता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह खुद अपनी मर्जी से चलकर गया बलि तक, वो क्रूस तक, सलीब तक खुद चल के गया, रजा कराना तौर पर अपनी मर्जी से वो बर्रा चल के गया, और उसमें कोई पाप, कोई बदी नहीं। उसका पाक लहू इसीलिए हमें पाक करता क्योंकि उसमें बदी नहीं। बैलों और बछड़ों का खून बहाने से फिर दोबारा कुर्बानी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यीशु मसीह के लहू से धुलने के बाद इसीलिए अब मसीहियों को कोई कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार लिखा है वो कुर्बान हो गया और उसने हमें सारे हमारे गुनाहों को और पापों को मिटा दिया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है मैंने अपना लहू बहाकर तुम्हें कीमत से खरीदा ताकि तुम्हारी रूहों को वापस ले सकूं, वापस तुम्हें वहीं पे ला सकूं जहां से तुम भाग गए थे, बदी करके, नाफरमानी करके और अपनी मर्जी चला के। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालो यूहन्ना 6। यीशु मसीह जानते थे, यीशु जानते थे कि अब मैं बहुत जल्द अपनी जान दे दूंगा, ये मेरे शागिर्दों के साथ मेरे आखिरी टाइम है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? उनके साथ गहरी बातें की, उनके साथ आखिरी फसा खाई, आखिरी खाना खाया, कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं, फसा खाऊं। हालेलुया। लिखे कि यूहन्ना 6 की 53 आयत निकालो। यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 53 आयत लिखे, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। क्लियर बात, जब तक तुम इब्ने आदम का खून ना पियो, उसका गोश्त ना खाओ, तुम में जिंदगी नहीं। ऊंची आवाज में बोलो, तुम में जिंदगी नहीं। हालेलुया। अब आप जब तक आप बैप्टाइज ना हो, आप खून और गोश्त में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए बैप्टाइज कितना जरूरी है कि अगर आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, गुनाहों की माफी मांगकर डुबकी नहीं लेते, अपने गुनाहों का इकरार करके पानी का बपतिस्मा लेकर नए सिरे से पैदा नहीं होते, तो आप खून और गोश्त में शरीक नहीं हो सकते। आप अगर खून और गोश्त में शरीक नहीं होते तो बाइबल कहती है आप में जिंदगी ही नहीं। हालेलुया। तुम में, अगर तुम गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं।
लहू में मैंने आपको बताया जान है, बाइबल कहती है। आखिरी वक्त में यीशु मसीह ने पकड़े जाने से पहले अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया और प्याला लेकर जूस को कहा, देकर उनसे कहा फेथ के साथ, ये लो इसको पियो, ये मेरा लहू है। इसीलिए आज भी जब हम शीरा लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं लेने से पहले कि ये यीशु मसीह का क्या है, लहू है। ये शीरा नहीं है, ये जूस नहीं है, बल्कि ये क्या है, यीशु मसीह का लहू है। और रोटी को लेकर लिखा है, उसने रोटी ली और तोड़कर उनको दी और कहा ये मेरा बदन है। और हम जब आज रोटी लेते हैं तो क्या कहते हैं कि ये यीशु मसीह का क्या है, बदन है, बाय फेथ। और जब उसका लहू हम लेते हैं तो बाइबल कहती है उसकी जिंदगी हम में इंटर करती है। जब यीशु मसीह की जिंदगी हम में आती है तो अपने आप बीमारी जाती है हमें छोड़ के, अपने आप वो चीजें जो हम कर नहीं पाते उनको करने की हमें स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए कभी भी इस मीटिंग को कभी मिस नहीं करना चाहिए, जिसमें आपको यीशु मसीह का खून और गोश्त आपको उसमें शामिल किया जाए या आप उसको ले सकें। हालेलुया, क्योंकि उसका बदन लेने से, उसका लहू लेने से आपके अंदर यीशु की ही जिंदगी इंटर करती है। हालेलुया। पुराने अहद में क्या होता था कि दो भाई जब वो जंग पे जाते थे तो दो दोस्त या दो भाई कह लो कि वो जब जंग में जाते थे तो उससे पहले वो एक अहद बांधते थे। अपनी कलाई को काट कर दोनों अपनी अपनी कलाई को काटते थे और यूं अपनी कलाइयां रगड़ते थे आपस में और कहते थे कि अब तेरा लहू मेरे अंदर चला गया और मेरा लहू तेरे अंदर चला गया। अगर मैं जंग में मारा गया तो तू मेरे पूरे खानदान को उनकी रखवाली करना, उनको टेक केयर करना, उनकी हिफाजत करना। अगर मैं मर गया तो तू करना, और अगर तू मर गया तो मैं तेरे खानदान की हिफाजत करूंगा और उन्हें संभाल के रखूंगा और उनकी पूरी तरह से खबरगिरी करूंगा। ये वो अहद बांधते थे और ये बात कही जा रही थी कि जो भी इस अहद को तोड़ेगा वो लानती होगा। हालेलुया। खून का अहद बांधा जाता था और वो फिर कहते थे आपसे हम अहद वाले भाई, हम अहद बांधे हुए भाई। हालेलुया, कि जंग में हम जा रहे कि अगर वापस आ गए तो ठीक, अगर हम में से एक आया तो जो बच जाएगा वो दूसरे का भी फैमिली, उसका घराना भी संभालेगा। यीशु मसीह, बाइबल कहती है खुदा ने जब भी इंसान के साथ कोई अहद मांगा तो वहां हमें लहू नजर आए। जब खुदा ने अहद किया नूह के साथ कि मैं दोबारा ऐसा बड़ा तूफान नहीं भेजूंगा जिसमें एक ही बार में पूरी दुनिया हलाक हो जाए, तो लिखा है तब जो कौसे कज़ा जो आप रेनबो देखते हो तो खुदावन ने साइन अपने अहद का निशान जो है वो जब रखा आसमान में तो उससे पहले हमें लहू नजर आता है। जो कि क्या किया था, नूह ने निकलने के बाद कुर्बानी चढ़ाई और लहू बहाया और उस लहू के बाद खुदावन ने अहद बांधा। अब्राहम ने कुर्बानी की और लहू बहाया। याकूब ने जब अपने मामा लाबन के साथ अहद बांधना था कि तू इस हद को क्रॉस नहीं करेगा ताकि मुझे नुकसान देने ना आए और मैं नहीं क्रॉस करूंगा ताकि तुझे नुकसान देने ना हो, हम दोनों आपस में क्या करते, अहद बांधते, और वो अहद भी उन्होंने लहू के साथ बांधा। हालेलुया। इस्राएलियों को जब खुदावन ने बचाया तो लहू के वसीले लहू को देखकर बचाया। उनके चौखटों पर बर्रे का लहू लगा था जो कि अक्स था उस असली बर्रे का, उस बेऐब बर्रे की कुर्बानी का और उसके पाक पवित्र लहू की ताकत का, कि इस तरह से बेऐब बर्रे का लहू तुम्हें छुड़ा लेगा मौत से। क्योंकि जहां कहीं लहू नजर आता है वहां मौत इंटर नहीं कर सकती। जहां यीशु का लहू नजर आएगा वहां मौत की कोई इजाजत नहीं कि वो वहां पर इंटर कर सके। हालेलुया। बचाने के लिए, अहद करने के लिए हमें लहू नजर आता है। हालेलुया। जब इसराइलियों को आप जानते हैं कि इसराइलियों को पूरे मिस्रियों के उनके पिलोठे मारे गए और सेम जगह पर रहते हुए खुदा ने इसराइलियों को बचाया। और लिखा है कि जब उन्होंने अपने चौखटों पर एक एक हर घराने ने अपने घर के पीछे एक बर्रे को ज़िबा किया और उसका लहू लेकर जब चौखटों पर लगाया तो उस लहू को देखकर वो मौत का फरिश्ता उन घरों में इंटर नहीं किया। जो अहद उनके साथ बांधा गया कि तुम्हें बचा लिया जाएगा, वो अहद कैसे पूरा होगा, लहू को देखकर। हालेलुया। हमें बचाने का अहद किया गया, लहू के साथ उस अहद को सील किया गया है कि तुम बचा लिए जाओगे। हालेलुया। आप जब गुनाह करते हैं, आज जब हम गुनाह करते हैं
बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? पीछे वाले बताओ। मौत है। आज जब आप गुनाह करते हैं तो शैतान के पास एक लेटर आता है, इसने गुनाह किया है, अब इसको मजदूरी मिलनी चाहिए। वो खुदा की हुजूरी में जाकर दिखाता, देख तेरे ही कानून में लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसने गुनाह किया, अब इसको मौत दे। किसको समझ आ रही है? तेरे कलाम में लिखे है जो कोई अपने माँ और बाप को लानत देगा उसकी उम्र काट दी जाएगी। कोताह कर दी इसने की, अब इसको मार दे टाइम से पहले। तेरे कलाम में लिखे है कि तू जो कोई तेरे खिलाफ बोलेगा, जो कोई तेरे कलाम की निंदा करेगा, तेरे कलाम को रौंदेगा, तू उसे ब्लेस नहीं करेगा। ये वो कर रहा है, अब इसको क्या कर, अब इसकी सारी बरकतें ले ले, हाथ उठा ले। वो लीगली वो लेके जाता है केस कि अब इसको ये कर, इसको मौत दे, इसने गुनाह किए। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा, और तो अपने कलाम से हटता नहीं है ना, तो देख तेरे कलाम में लिखा हुआ है गुनाह की मजदूरी मौत है, इसे मौत दे। और जब ये मुकदमा मेरे और आपका वहां पहुंचता है ना, जब हम गुनाह करते हैं, तब यीशु मसीह का लहू बात करता है। तब यीशु मसीह का लहू पिता से ये कहता है, बाप के आगे ये रखता है कि मैंने इसका कफारा दिया। तब वो है जो लहू से सील हो चुका, तो उस अहद को याद किया जाता है कि इसका कफारा हो चुका है। इसीलिए दोबारा माफी मांगने पर आपको माफी मिल जाती है, याद रखना। हालेलुया। क्योंकि उस अहद को याद किया जाता है जो लहू से सील हो चुका है कि तुम बचाए जा चुके हो, तुम्हारी कीमत अदा हो चुकी है, तुम छुड़ाए जा चुके। उस अहद को याद किया जाता है और फिर आप पर रहम होता है और आपको माफी मिल जाती है। हालेलुया। इसीलिए अपनी माफी को आप नहीं समझो, इसीलिए सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ माफी मांगो, क्योंकि आपके लिए उस अहद को फिर से याद किया जाता है। वो लहू फिर से आपके लिए बात किया जाता है, बात करता है कि मैं इसके लिए बहा था, ताकि मैंने इसको खरीदा हुआ है, ये मेरे मुझसे खरीदा। यीशु का लहू कहता है ये इसको मैंने खरीदा हुआ है, ये तो मेरा है। इसीलिए फिर वो अपनी दया को, अपने फजल को नाजिल करता है ताकि आप माफी मांग सके। और फिर जैसे ही आप फजल को रिसीव करके माफी मांगते हो, लहू फिर से आपको धो के पाक और साफ कर देता है। याद रखो, जिस दिन आप अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, वो आपकी पूरी लिस्ट रब की कर दी जाती है, क्लीन हो जाती है, बिल्कुल पूरा जैसे सफा दूसरा लगा दिया गया। और वो सारे बुरे गंदे घिनौने काम किससे धुलते हैं? बोलो बोलो, किससे धुलते हैं? यीशु के लहू से। इसलिए वो लहू बड़ा कीमती है, इसलिए वो बड़ा खास है और आपकी और मेरी जिंदगी में इसीलिए उसकी एक प्रीशियस वैल्यू है, एक खास अहमियत है। क्योंकि अगर वो लहू हमें ना धोए और उस लहू से हमारे साथ एक अहद ना बांधा जाए कि तुझे बचा लिया गया, हम कभी बच नहीं सकते। हालेलुया। बगैर लहू बहाए बाइबल कहती है माफी नहीं। और बैलों और बछड़ों का खून इस काबिल नहीं कि वो हमें पूरी माफी दे सके। इसीलिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया ताकि हम पूरी माफी पाएं, पूरा छुटकारा पाएं, पूरी रिहाई पाएं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के लहू से धुलना, उसके लहू को अपने ऊपर इनवाइट करना, अपने ऊपर पुकारना, उसको मांगना, उसके धुलने के लिए मिन्नत करना, हर रोज अपने आप को उसके लहू की धारा के नीचे रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए उसके लहू से धुलना, उसकी अहमियत को जानना कि वो कितना कीमती है, जानते समझते हुए खौफ के साथ उसको अपने अंदर लेना और इस इकरार के साथ कि यीशु का लहू जब मेरे अंदर आ जाएगा तो जिंदगी मेरे अंदर जाएगी। यीशु मसीह का जब मैं खून और गोश्त लूंगा तो ये आम रोटी नहीं, आम जूस नहीं है, बल्कि उसने कहा ये जूस मेरा लहू है। हालेलुया। ये उस अहद का लहू है जो तुम्हारे साथ बांधा गया। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या आपको कलाम समझ आ रहा है? पीछे बताइए मुझे। हालेलुया। लहू की वैल्यू समझनी है कि इस लहू से छुटकारा हुआ है। ये लहू ना बहता हमारे पाप, हमारे गुनाह कभी भी धुल नहीं सकते थे, क्योंकि बगैर, बोलो अपने मुंह से, बगैर लहू बहाए माफी नहीं। अब मुझे माफ किया जा चुका है क्योंकि मेरे लिए लहू बह चुका है। अपनी आंखों को बंद करके इस लहू के ऊपर मेडिटेट करो।
मेडिटेट करो कलाम के ऊपर, बोलो लहू को अपने ऊपर बोलो। बोलो यीशु का लहू जिसमें ज़िंदगी है, आज उस लहू को मैं लेने जा रहा हूँ। आज उसको मैंने लहू को लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने तमाम गुनाहगारों को, कसूरवारों को माफ़ कर दिया है। आज मैं लहू को लेने जा रहा हूँ, और यीशु का लहू जब मुझ में आएगा तो यीशु की ज़िंदगी मुझ में आएगी। बाइबल कहती है कि अगर तुम उसका गोश्त ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं। पर आज मैं उसका गोश्त खाने और उसका लहू पीने को हूँ, तो ज़िंदगी भी मुझ में इंटर करने जा रही है। बाइबल कहती है उसने हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल कर लिया है, और ये ज़िंदगी आज मेरे बदन में दाखिल होने जा रही है, मेरी हड्डियों में जा रही है, मेरे रूह जहाँ बदन में जा रही है, मुझे बदलने जा रही है, मुझे अगले लेवल पर लेकर जा रही है, मुझे यीशु मसीह की कुर्बत में लेके जा रही है। हालेलुया। यीशु मसीह की ज़िंदगी पूरी तरह से तारीकी के कब्जे को, शैतान के इख्तियार को, उसके हाथ को मेरी ज़िंदगी से उठाने जा रही है। आज का लहू में शरीक होना, उसके खून और गोश्त को लेना मेरे लिए सदा के लिए मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने जा रहा है, मुझे सेहत देने जा रहा है। मुझे शर्मिंदगी से इकरार करो, जैसा इकरार बाइबल कहती है अमसाल 18 बाब में लिखा है कि तेरे मुंह में ज़िंदगी और तेरे मुंह में मौत है। लिखे जुबान के इख्तियार में ज़िंदगी